नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम my dear students. I welcome you aboard and I hope you had a good class yesterday. Just a quick recap of what we learned or what we did yesterday in our session. Yesterday, we started a course by having a bit of an introduction about the project monitoring and controlling itself. Also, I made few emphasis on few points, but the most important point is the course content. As I said before, these lectures would be an talking class, talking book for you guys. So, in that lecture, we actually covered all the contents of the project monitoring and controlling and all the aspects of how we are going to take these lectures along. So without wasting further more time, let's start with the lecture. Today, the lesson 1 out of the course content, if you can see that. Lesson 1 is examining professional project management. And out of that, our topic for today is topic 1A. Identify a project management process. Before we move further, I would like to put few things in front of you guys so that you should know that for project monitoring and controlling, what are the exact definitions and what they actually do. So in that way, before defining all the rest of the processes or the implication of project monitoring and controlling over rest of the project management processes, we must know, or you should know, that what is project monitoring. Project monitoring is, you can say, is procedures. Number 2, collecting data. Number 3, project performance. Achieved or forecasted. Okay, let me explain you what does that mean. Procedures, collecting data, and project performance. Project monitoring refers to, number 1, your procedures. There are certain procedures to monitor something. Even if you are monitoring a child, even if you are monitoring a class, even if you are monitoring a road while you are driving, there are certain procedures. You cannot just move your head or move your hands without for monitoring. It's just that you have to hold the steering. You have to keep your eyes on the road so that you can keep on monitoring and controlling your car while you are traveling. So if those procedures are in place and you have those procedures, then after that you collect data. By adopting all those procedures, you collect your data, and after collecting the data, you assess your project performance. Number 1, in 2 ways. One is how much you have actually achieved while you are executing your project. Number 2, what are the forecasted performance. Yesterday I've explained you what is forecasted performance. I'll explain a bit more, or I'll explain just a bit about that more. That your forecasted is something you see what's gonna happen next. You forecast your project where it is actually driven. Again, note that performance could be in terms of time, money, or quality. Yeah, all those people who have studied project management before or have a knowledge of project management, they will be knowing that time, money, and quality are the 3 major aspects of your project performance. Your project is actually judged mainly over these 3. Number 2, forecasted performance, we call it as a program. Your program is something which is in future. Okay, as we say, यार क्या program है अभी फलां चीज़ किस तरह काम करना है. So we usually use this word. So that's why I'm using this typical word over here so that you can memorize it. Number 2, achieved performance is equal to progress. Definitely, how much we have traveled so far, that is your achieved performance. Guys, let me tell you something. While I'm teaching you this PMC as a core subject, as something specialized subject, I will be giving you different examples from our daily life, because every science is developed from a very smallest of the thing or smallest of the thought. So
we'll always return to the basics. From basics, we'll always pick up a new start. So I'll give you example of if we are traveling, we always say, okay, abhi hum kahan tak pahunche. So that is how we are actually measuring our progress, how much we have traveled so far, what was the progress. Number 3, technology helps greatly in project monitoring. Yeah, that's a very good point for me, because I love to use different kind of technologies, or one should, as a project manager, you should have a grasp over different kind of a software, technology, cause hybrid, technology plus idea. If you combine it, it's a multi-million-dollar idea, it's a multi-million-dollar business. So technology helps greatly in project monitoring. You have your Gantt chart, you have your different softwares, you have MS Project, you have Primavera, different softwares for your project monitoring and your scheduling. You can see different resources, how much they have been utilized, how much costing is there, how much overhead they have been charged. So this helps a lot for monitoring. Avoiding deviation in project cost, time and quality, common challenges faced by project manager. Okay, this again, as of yesterday, I've shown you some of the results by some researchers. This is another research. How much project manager pays in terms of his time, in terms of money, in terms of running after different resources, project or problems, how much they actually face the problem by avoiding cost, time and quality challenges that they might face at that time. Number 1 is ranking in order. 1 is the highest one. Coping with end date driven schedule. 85%. Frequency is 85%. That is the highest. Let me tell you guys, 1 out of 5 projects in USA itself, 1 out of 5 projects, they fail because of these 3 factors: cost, time and quality. So coping with end date driven schedule. Time short hai, हमें ये काम जल्दी से खत्म करना है. This is the most common thing that I hear in my whole 15 years of project management life. टाइम बहुत शॉर्ट है, जल्दी से इस काम को ख़त्म करो, आगे चलते हैं, इस चीज़ को छोड़ दो, यहाँ पे सेक्रीफाइस कर देते हैं. सो स्केड्यूल मीट होना चाहिए. इन ऑर्डर टू मीट स्केड्यूल यू सेक्रीफाइस अ लॉट. नंबर 2, कोपिंग विद रिसोर्स लिमिटेशन. हमारे पास इतने रिसोर्स थे, by the end of the project हमारे पास इतने रिसोर्स रह गए, so we have a limitation, so let's wrap up, cut the scope और quality के साथ compromise कर देते हैं. Communicating effectively among task group. Again, communication gap is one of the biggest problems. Number 4 is gaining commitment from team members. Again, if you avoid cost, time and quality, and these kind of challenges that are being faced by you, you have to deal with these kind of issues, gaining commitment from team members. You cannot force people to work. You cannot force people to overdo something. You cannot force people to make things happen out of nowhere. Gaining commitment from team member, लोगों का trust gain करके उनकी commitment हासिल करके और फिर उनसे वो काम करवाना. Again, this is a very problematic thing. Establishing measurable milestone. Your milestone is, again I am saying, your milestone is one of the key things that will help you to monitor and control. Both monitor and control your project. So you have to establish your milestone which are achievable. Many people, they overcommit. Many people say, हाँ जो 10 दिन का काम होता है, in order to get the project or in order to do business, they sometimes overcommit. कि हाँ ये काम तो हम लोग 5 दिन में कर सकते हैं, so that they can filter out their competitors or they can bring themselves up. They overcommit. So establishing measurable milestones, ये आपके milestones जो हैं वो measurable होने चाहिए. Coping with changes. आप coping with changes is 60%. That is more than half of 100% is like
आप चेंजेस के साथ कैसे कोप करते हैं। आप बहुत से लोग एकदम परेशान हो जाते हैं, यार ये चेंज आ गया, रिक्वायरमेंट चेंज हो गई है, क्लाइंट ने ये कह दिया, फलां हो गया, स्पॉन्सर ने ये मसला कर दिया, आपके बहुत सारी चेंज, एवरीथिंग दैट इंक्लूड्स इन चेंजेस, आपके टाइम हो गया, कॉस्ट हो गया, क्वालिटी हो गया, रिसोर्सेज हो गया, कम्युनिकेशन, एवरीथिंग, उसके साथ आप जब कोप करते हैं वो वर्किंग आउट प्रोजेक्ट प्लान एग्रीमेंट विद द टीम, जो आपकी टीम ने अग्री किया था, बिकॉज व्हेन यू आर मेकिंग योर स्केड्यूल, व्हेन यू आर प्लानिंग एंड मेकिंग योर स्केड्यूल, यू ऑलवेज इंक्लूड योर टीम मेंबर हु आर एक्चुअली गोइंग टू वर्क ऑन दोज टास्क और एक्टिविटीज। सो जो उनके साथ एग्रीमेंट हुआ था उसको आप साथ लेके चलें। गेनिंग कमिटमेंट फ्रॉम मैनेजमेंट, जो आपकी मैनेजमेंट है, जो टॉप मैनेजमेंट या आपके जो भी सीनियर मैनेजमेंट है, उसके जो कमिटमेंट है, दैट इज वेरी नेसेसरी फॉर अ प्रोजेक्ट सक्सेस। इफ दे लूज देयर कमिटमेंट, you consider your project as 95% of failure project. It's gonna end up like anything, like in even before the time, आपके अगर प्रोजेक्ट के जो स्पॉन्सर हैं या जो हायर मैनेजमेंट है, अगर उसकी कमिटमेंट खत्म हो गई है तो आपका प्रोजेक्ट भी समझे खत्म हो गया। Dealing with conflicts. There are many kind of conflicts that may occur during your project management life or during your project life. You're starting from your personal conflicts with the client, your personal conflict with the upper management, your personal conflict, your team management, your team mates conflict with you or among themselves, your other staff, outer resources, every other conflict that you may come across, even with your vendors. It is about 42%. Managing vendors and subcontractors, as I said before, dealing with conflict, it is of the same part. Managing vendors and subcontractors, again, they are your vendors, not your employees. So managing your vendors and subcontractors, sometimes they become pain for your project. Sometimes they become those kind of people who are actually making your project stop. So to avoid those things, anyway, other challenges could be anything. Your geographical challenges, your economical challenges, government, your policies, your environmental, your geographical location, all these kind of challenges, their occurrence is 35%. Okay. Now, yesterday we were talking about the feedback thing. So here it is what I was trying to tell you yesterday. This is the perfect example or perfect loop for your feedback process of monitoring and controlling. You are monitoring measurement and performance analysis, detect deviation, you control through different actions, and actions again revise plan, cash flow, schedules, etc. Make those corrective action, and then again you monitor. That this is an ongoing process. This is an ongoing process throughout your project management life, throughout your project. This will never stop. You always keep on improving. It's been said, wo jo kehte hain na, that there is always a room for improvement. It is the same thing. There is always a room for improvement. Nothing is perfect. So you will keep on doing this loop like any other process or any other thing. In the next slide, there are 3-4 slides ahead जो कि आपको अब एक्चुअली बताएंगी कि प्रोजेक्ट कंट्रोल जो है वो कैसे कौन कौन से उसके इंडिकेटर्स होते हैं। प्रोजेक्ट कंट्रोल आपको कहाँ कहाँ पे काम आएगा, प्रोजेक्ट कंट्रोल का एक्चुअली जो बिग पिक्चर है वो क्या है। Number 1, we'll start with the big picture of monitoring indicates that project is behind time schedule and or project has exceeded budget or quality of material or finished work is below standard and productivity is lower than as planned, etc. The first point is project is behind time schedule. Your monitoring will few indicators, there are few indicators which always tell you that what is happening to the project, and these 4 are the major one. Number 1 is project is behind time schedule. If you आपने एक काम 5 दिन में ख़त्म करना था और अभी तक आपका 50% काम हुआ and today is the 4th day of that activity of the task,
definitely you are lacking something. There's certainly something wrong with that activity. There's certainly something wrong with the planning. The way you have planned for that activity, उसमें कुछ मसला है और आपने रिस्क असेसमेंट अपनी ठीक नहीं की. सो वो कोई ना कोई इशू है जिसकी वजह से आपका जो है प्रोजेक्ट वो टाइम स्केड्यूल से पीछे है. नंबर 2, प्रोजेक्ट हैज एक्सीडेड बजट एंड व्हाट डज दैट मीन? इट मीन्स आपने एक प्रोजेक्ट के लिए या लेट्स से आपने एक एक्टिविटी के लिए आपने 5 रुपीज़ आपने सजेस्ट किए थे या आपने प्लान किया था कि हाँ ये काम जो है हमारा 5 रुपए में हो जाएगा या हम 5 रुपए में इसको परचेज कर लेंगे, विदाउट इवन कीपिंग मैनी अदर फैक्टर्स इन माइंड कि हाँ इन्फ्लेशन क्या चल रही है, मार्केट सिनेरियो क्या है, कंपेटिटर्स क्या कर रहे हैं, कितने डिलीवरी क्या है, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस क्या हैं, यहाँ आपके ऑयल प्राइसेस कहाँ जा रही हैं, कम हो रही हैं, बढ़ रही हैं, कोई स्ट्राइक तो नहीं आने वाली, मैनी थिंग. सो आपने वो जो 5 रुपए रखे थे, आपने उसकी जो रिस्क असेसमेंट थी, आपने उसकी जो प्लानिंग थी वो आपने ठीक नहीं की और आपका जो बजट है अभी तक वो 5 रुपए से 15 रुपए तक हो चुका है. इफ़ इट इज़ 15 रुपीज़ और आपने अभी तक वो अपना काम अचीव नहीं किया, ये इवन के कर भी लिए, तो तब भी वो जो बजट आपका इंक्रीज हो गया, देयर इज सर्टनली समथिंग रॉन्ग एंड दैट इज थ्रू मॉनिटरिंग योर costing, your budget, your planned activities against what is actually happening. Actual cost आपकी क्या उस वक्त आ रही है. जब आप उसको मॉनिटर करते हैं आपको पता चल जाता है there's certainly something wrong with that. Quality of material or finished work is below standard. Okay. Sometime when you don't monitor and you keep on working on a project or some product and you are totally focusing on the timeline and the cost rather on the timeline कि हमने ये काम 10 दिन या 15 दिन के अंदर within 15 days we have to finish, within 10 days 15 days we have to finish. जब आप उस पे टाइमलाइन पे अपने फोकस कर रहे होते हैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि आपके जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, वो आप अचीव नहीं कर सकते. जब आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी अचीव नहीं होती है या बाय द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट आप देखते हैं कि हाँ जी दिस इज़ द फाइनल प्रोडक्ट जो हमने इस वक्त बनाया है, और उसकी जब क्वालिटी टेस्टिंग होती है या उसकी जब उसको चेक किया जाता है तो पता चलता है कि हाँ जी ये तो हमारे स्टैंडर्ड्स को या क्लाइंट के स्टैंडर्ड्स को ये तो मीट ही नहीं करता. तो वो आपका जो क्वालिटी है वो आप मेजर कर रहे होते हैं, जब मॉनिटर कर रहे होते हैं बाय डिफरेंट वेज. इंस्पेक्शन होती है, क्वालिटी ऑडिट होता है, चेक्स होते हैं. प्रोडक्टिविटी इज लो देन एज प्लान्ड. आपने प्लान किया था कि सपोज करें आपका कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें आपने कोई प्रोडक्ट बनाने मल्टीपल टाइप के, आपने उसकी प्रोडक्शन लाइन में जब वो लेकर आते हैं आपको पता चलता है कि आपने डेली का अपना जो प्लान किया हुआ था वो था कि 10 आपने यूनिट्स बनाना है, लेकिन एक्चुअली आपके जो डेली यूनिट्स इस वक्त प्रोड्यूस हो रहे हैं वो आपके 5 हो रहे हैं या 6 हो रहे हैं. सर्टेनली देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द प्रोसेस, सर्टेनली देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द इंडिकेटर्स दैट यू हैव मेंशन्ड बिफोर ड्यूरिंग योर प्लानिंग कि हाँ जी ये चीज़ें होंगी तो हमारी इतनी प्रोडक्टिविटी होगी. आपके वो जो प्लानिंग थी वो आपकी गलत थी वहाँ पे. और अगेन आपके जो प्रोडक्टिविटी है खाली वो आपकी प्रोडक्शन के लिहाज से नहीं होती, आपके ह्यूमन रिसोर्स की प्रोडक्टिविटी भी होती है कि वो आपकी कैसी थी. ओके, विल कंटिन्यू दिस बिग पिक्चर इन द नेक्स्ट स्लाइड. गिवन सिनेरियो इज योर प्रोजेक्ट इज ऑफ द ट्रैक. आपको इतना पता चल चुका है इस वक्त कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो जो आपने प्लान किया था या जो आपकी लाइन थी या बेस लाइन थी या जो आपका ट्रैक था वो उससे डेविएट हो चुका है. नेक्स्ट सिनेरियो इज what are the options you have as a project manager. आपके पास options क्या हैं? Number 1 is आपके पास we call it PC4Ms, project control 4Ms. Number 1 is resource available to the project managers for project control is money, manpower, labor, your human resources, material, all kind of a material that could be your hardware, your machinery, anything, and your machinery. ये आपके 4Ms जो हैं ये मटेरियल में आपके सारे मटेरियल आ जाते हैं. मशीनरी में आपका स्पेसिफिकली यू आर मेंशनिंग योर मशीनरी और योर इक्विपमेंट.
सो ये 4M है जिसके साथ प्रोजेक्ट मैनेजर, आप लोग, बिकॉज यू आर द फ्यूचर प्रोजेक्ट मैनेजर, आप लोग इन 4 चीजों के साथ मनूवर करेंगे, प्ले अराउंड, यू विल प्ले अराउंड विद दीज 4 थिंग। कभी आप पैसा बढ़ा देंगे, कभी आप रिसोर्सेज बढ़ा देंगे, कभी आप मटेरियल चेंज कर देंगे, कभी आप इक्विपमेंट एफिशिएंटली आएंगे। सो आपके पास ये 4 चीजें हैं जिनके साथ आपने प्ले अराउंड कराना है, बाय कीपिंग ऑल द फैक्टर्स इन माइंड, योर टाइम, योर कॉस्ट, योर क्वालिटी, आपका स्कोप, आपका क्लाइंट, ये सारी चीजें आप अपने जहन में रखेंगे और उसके बाद इन 4 चीजों के साथ यू विल प्ले अराउंड। ओके, next slide shows, the big picture shows, given project is off the track, you have resources, 4Ms. Now what are you going to do? In resources, more labor or better labor, there's a difference. आप 10 बंदे लगा के काम करते हो या आप 2 experts को बुला के काम करते हो. So more resources or better labor, more labor or better labor is your decision. बेटर सुपरविजन, आप अपना सुपरविजन बाज़ का इंक्रीज कर देते हैं. हाँ जी, आपको पता चलता है कि जो आपके रिसोर्सेज हैं वो काम प्रॉपर तरीके से नहीं कर रहे. इफ दे आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली एंड दैट इज द रीजन बिहाइंड द प्रोडक्टिविटी लेवल दैट इज लो, देन you need not to do certain things. You only create a supervisor, you only create a person or resource or certain aspect where there is a supervision. बहुत से तरीके होते हैं. आप कैमरास लगा देते हो, you hire someone, you hire a supervisor, you create a supervisor out of those resources, many other things that you can do. Number 3 is more material or better material. Again, as I said before, for more labor or better labor, same is the case over here. Many people, many project managers having less experience, they think, this is a mistake that they make, they think that more material will help increase the productivity or the quality or XYZ factor of a project. But my personal suggestion as a project management professional is you must choose better material. Most of the cases, better material is the good choice. Most of the cases, yes. Obviously, there are certain scenarios where better material might not work. You might have to choose both more material and better material. But mostly, it is more equipment or better equipment. Same thing as before. I need not to explain that thing. More money. Yeah, this is again a typical problem, typical thing that happens is many people says in order to achieve certain goal, they think कि हमें ज़्यादा पैसे मिलें तो तब हम ये काम बेहतर तरीके से कर सकेंगे. I say कि आपको ज़्यादा पैसे भी अगर दे दिए जाएं और आपके पास वो नॉलेज, वो कैपेबिलिटी नहीं है या आपके वो सोच नहीं है एज अ एक्सपर्ट प्रोजेक्ट मैनेजर या एज ऐसा प्रोजेक्ट मैनेजर के जिसकी दूर की सोच होती है. इन सिंपल वर्ड, दूर की सोच आपकी अगर नहीं है तो आपको जितने मर्जी में पैसे दे दिए जाएं, आप प्रोजेक्ट को फिर भी फेल कर दोगे, आप उसको ऑप्टिममली यूटिलाइज नहीं करोगे. सो मोर मनी इज अगेन समथिंग दैट, डू यू रिक्वायर मोर मनी और you can play around with the money that you already have. Project. Reduce project size or reduce project scope. After those 4 M's for project controlling, mechanism and elements of project controlling, in that reduce project size or reduce project scope. Sometime you reduce project size. Okay, अभी हम लोग इस फेज में हम लोग इसका जो स्कोप है हम इसको इतना कर देते हैं, नेक्स्ट फेज में हम इसको इतना कर लेंगे. बाज़ का तो आपने एक बड़ा चंक पहले के लिए रख लिया होता है, छोटा चंक बाद के लिए रखा होता है. बाज़ का तो आप छोटा चंक पहले रख लेते हैं फॉर टेस्टिंग और जो बड़ा चंक है प्रोजेक्ट का उसको आप बाद में चूज कर लेते हैं. रिड्यूस प्रोजेक्ट साइज, आप शुरू में आपने 10 रिसोर्सेज हायर कर लिए, एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल रिसोर्सेज आपको प्रोजेक्ट साइज को शो नहीं करते, लेकिन एक हम लोग एक बिल्कुल लेमैन एग्जाम्पल के तौर पर अगर इसको समझें तो रिड्यूस प्रोजेक्ट साइज में हम इसको इस तरह देखें एक लम्हे के लिए कि आपके 10 रिसोर्सेज आपने हायर कर लिए, आपको लगता है विद द पैसेज ऑफ टाइम कि हाँ जो काम 5 रिसोर्सेज कर सकते हैं वो
जो काम 10 रिसोर्सेज कर रहे हैं वो मेरे 5 रिसोर्स भी कर सकते हैं. सो लेट्स रिड्यूस दीज रिसोर्सेज. इट्स टोटली अप टू यू. और sometime you terminate the project. Yes, this is not achievable. We cannot achieve our time. We cannot achieve the quality. The scope cannot be achieved. So let's terminate the project. Termination की और भी बहुत सारे reasons होते हैं. Something like आपके management की commitment खत्म हो गई है, जो मैंने पीछे आपको explain किए थे. So in this big picture, आपका mechanism elements of project control ये यहाँ पे मैंने आपको explain किए हैं. आउटपुट क्या निकलेगा इसका? हैप्पी प्रोजेक्ट मैनेजर. एट द एंड ऑफ द डे यू विल बी हैप्पी गो लकी काइंड ऑफ अ पर्सन. आपका प्रोजेक्ट मैनेजर, आप जो हैं वो बस खुशी मना रहे होंगे कि हाँ चलो प्रोजेक्ट मेरा सक्सेसफुल हो गया, मैंने ये ऑप्शंस ऑप्ट किए थे. Okay, now few wording, because definitely you need specific words for your learning and to remember what is project monitoring controlling process group. क्योंकि हमारा आज का जो फर्स्ट लेसन है वो आइडेंटिफाई करना भी है कि हमने अगर हम अपने लेसन को देखें लेसन का, तो वो दैट इज आइडेंटिफाइंग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेसेस. सो दिस इज व्हाट प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग प्रोसेस ग्रुप इज. The monitoring and controlling process group consists of those processes required to track, review, and regulate the progress and performance of the project. Identify any areas in which changes to the plan are required. Identification. You identify. First you observe, you identify, and then you notify. Remember this thing. Observe, observation, identification, and notification. Sometimes you see certain things. Sometimes your teammates, your subordinates, your team member, they will observe certain things which you might not be able to observe because you are not always in the team. You are not always in the field. So there are certain things which they will observe. So there should be a mechanism that they communicate after observing. They identify the problem. After identification, they communicate that thing, that problem or that issue to the respective person, to the authorities, to yourself, and initiate the corresponding changes. Most of the time, project managers have to take decisions in practical world. मैं आपको practical world के लिहाज से बता रहा हूँ, किताबी लिहाज से नहीं. प्रैक्टिकल वर्ल्ड में आपको बहुत बार डिसीजंस ऑन द स्पॉट लेने पड़ेंगे विदाउट फॉलोइंग द स्पेसिफाइड प्रोटोकॉल, क्योंकि प्रोटोकॉल फॉलो करते करते आपका शायद दिन गुजर जाए. यस, यू मस्ट फॉलो द प्रोटोकॉल लेटर ऑन द डे, लेटर नेक्स्ट डे और नेक्स्ट वीक और ऑन द फोन, बट यू हैव टू टेक डिसीजंस ऑन द स्पॉट. सो आप उसी वक्त बहुत सारे डिसीजंस लेकर, सपोज करें यू आर इन अ कंस्ट्रक्शन बिजनेस, आप कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, आपको उसी वक्त डिसीजन लेना है कि हाँ फलां जगह पे हमारा फलां पिलर होना चाहिए या नहीं चाहिए, या हमारे इस वक्त ये क्रेन जो है काम नहीं कर रही है. सो डू वी हैव फ्यू 5-6 रिसोर्सेज जो कि उस चीज़ को उठा के वहाँ तक पहुँचा सकें, एनीथिंग, या इस दीवार को यहाँ पे अभी तोड़ा जा सके. सो आप वो रिसोर्सेज यूटिलाइज करने के बजाय वहाँ पे आपका क्रेन खड़ा है, आप उस क्रेन को वहाँ से बुलाते हो, आप कहते हो मैं आपको 500 या 5000 रुपीज़ पर आवर दूंगा क्रेन चार्जेस, आप ये यहाँ पे इन 4 दीवारों को तोड़ दें. वो 5000 रुपीज़ उस क्रेन वाले को आपका देना ज़्यादा बेहतर होगा बजाय इसके कि आप वो 15 रिसोर्सेज यूज़ करें फॉर नेक्स्ट 3 डेज़ के वो उन 4 दीवारों को तोड़ें. सो आपको बाज़ का यू हैव टू टेक इमीडिएट एक्शन. डिसीजन आपको उसी वक्त लेना होता है. अगर नहीं लेंगे तो वो 5000 आपके जो इधर लगेगा फॉर 1 डे, आपके 15 रिसोर्सेज 20,000 आपको पड़ेंगे. सो अप्रूवल इस तरह के लेने के आप बाद में उन चीज़ों को कर सकते हैं. इनिशिएट आपने उसी वक्त करना है. नंबर 2, द की बेनिफिट ऑफ दिस प्रोसेस ग्रुप इज दैट प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस इज ऑब्जर्व्ड एंड मेजर्ड रेगुलरली. Remember this thing. Project performance is observed and measured regularly.
यही बात मैं आपको पहले कह रहा था, एंड कंसिस्टेंटली टू आइडेंटिफाई वेरिएंसेस फ्रॉम द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान। इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो मेजर डॉक्यूमेंट फॉर एवरीथिंग, जैसे कहते हैं ना प्रूफ, आपका हर चीज का प्रूफ या हर चीज की बेसलाइन, एवरीथिंग इज इन योर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान। आई एम वेरी मच श्योर कि आपने ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान अब तक सीख लिया होगा, पढ़ लिया होगा, बल्कि बहुत से लोगों ने अब तक बनाया भी होगा। सो आपको इसका बिल्कुल आइडिया होना चाहिए कि आपको बिल्कुल आइडिया होना चाहिए कि आप वेरिएंसेस जो आइडेंटिफाई करते हैं वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लानिंग के थ्रू करते हैं। Continuation of the previous slide, the monitoring and controlling process group also include controlling changes and recommending preventive action in anticipation of possible problem. In this point, we are actually talking about risks. Monitoring the ongoing project activities against the project management plan and the project performance baseline. And this point need not to be explained much further. हम already इस पे बहुत बात कर चुके हैं. Influencing the factors that could circumvent integrated change control, so only approved changes are implemented. Sometime आप 5 चीजें ऊपर भेजते हैं, सीनियर मैनेजमेंट के पास 5 चीजें भेजते हैं, वो उसमें से 3 अप्रूव कर देते हैं, 2 अप्रूव नहीं करते। They have their own reasons. Every top management have their own reasons because they have the bird eye view of everything, of the organization, of the project. They know where they should go, they know where it is actually going. So बहुत बार ऐसा होता है कि आप 5 चीजें भेजेंगे, they'll approve 3. You cannot do 2 other things on your own because by the end of the day your neck will be on the stake. Your own performance, your own value will be at the stake. So आप सिर्फ वही चीज implement करेंगे जो जिसकी आपको approval मिली हुई है। Okay, this slide is very important. Please, I specifically make emphasis to all of you guys, all of you people, that this slide is a core of this whole course. Because pictorially, I have shown over here how monitoring and controlling is actually influencing all the areas of project management. If in the middle you can see project integration management, ये आपको पहले भी पता है कि इंटीग्रेशन जो है इट वर्क एज अ बैकबोन, आपकी स्पाइन के तौर पे काम करती है आपका प्रोजेक्ट में, कि वो हर चीज को इंटीग्रेट कर रही है और उधर से ही हर चीज चेंज हो रही है, उधर से ही हर चीज निकल रही है, उधर ही आके हर चीज मिल रही है. सो दिस इंटीग्रेशन मैनेजमेंट इज एक्चुअली अ स्पाइन ऑफ योर प्रोजेक्ट. Number 1 over here is monitor and control project work. Number 2 is perform integrated change control. आप अगर इस डायग्राम को या इस पिक्चर को आप थोड़ा सा गौर से ऑब्जर्व करें तो आपको बेसिकली 8 प्रोसेस, 8 नॉलेज एरिया ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आपको यहां पे नजर आएंगे. द रीजन आप ये पीएमसी कोर्स पढ़ भी रहे हैं या आपको पढ़ाया जा रहा है ताकि आपको ये पता चले कि खाली प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को इटसेल्फ पढ़ लेना, या बॉडी ऑफ नॉलेज को पढ़ लेना, या खाली ये 9 नॉलेज एरियाज का आपको पता होना इज नॉट द गारंटी फॉर यू बीइंग अ प्रोफेशनल एंड अ गुड प्रोजेक्ट मैनेजर. यू मस्ट नो all the stakes of project monitoring and controlling in relevance to your different knowledge areas. और आप देख सकते हैं कि 9 में से 8 नॉलेज एरियाज में ये पीएमसी अपना इन्फ्लुएंस उधर डाल रहा है. प्रोजेक्ट स्कोप मैनेजमेंट, इन दिस वी verify your scope and after verification you control your scope. How? Through monitoring control project work and perform integrated change control. ये 2 चीजें हैं which will always keep on working. ये round the clock they will keep on working. Number 2 is project procurement management. In this you administer your procurements. आपके जो procurements हैं आप उसको administer करते हैं. Let me give you an example. आप कोई चीज प्रोड्यूस कर रहे हैं और किसी प्रोडक्शन के आप प्रोजेक्ट मैनेजर हैं और उसमें आपके पास मटेरियल इतना आया था कि आप 5 दिन अपनी प्रोडक्शन को चला सकें, कंटिन्यू कर सकें. आपने अपनी प्रोडक्शन के ऊपर फोकस किया, क्वालिटी पे फोकस किया, टाइम पे फोकस किया, स्केड्यूलिंग, हर चीज पे आपने फोकस किया. आप ये भूल गए कि आपके बैकएंड में कितने रिसोर्सेज अभी मजीद पड़े हुए हैं.
कितना आपके पास मटेरियल इस वक्त वेयर हाउस में पड़ा हुआ है, कितना आपका मटेरियल आना है, उसके आने में कितना टाइम है। आप अपनी प्रोडक्टिविटी को अचानक से इंक्रीज कर देते हैं, क्यों? क्योंकि आपका क्लाइंट, आपका स्पॉन्सर, आपका ओनर कहता है कि जी मुझे ये इतनी चीज़ें मुझे इतने दिनों में चाहिए। आपका फ़ौरन से सबसे पहले आपका जो दिमाग है वो जाना चाहिए कि मेरे पास कितना मटेरियल पड़ा हुआ है, या मुझे मटेरियल मंगवाने में कितना टाइम लगेगा, हाउ मच टाइम डू आई एक्चुअली हैव, और हाउ मच टाइम I'll be needing for the procurement of those material. So project risk management, monitor and control risk. As a good project manager, you should have your sense of risk assessments. आपके जो कहते हैं ना छठी हिस्स जो होती है, आपके अपने रिस्क असेसमेंट या रिस्क मॉनिटर करने की, कंट्रोल करने की, उसको प्लान करने की आपकी जो सेंस है वो बहुत तेज़ होनी चाहिए। और वो विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद योर एक्सपीरियंस, आपको ये चीज़ आ जाती है। हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन आपके पास होती है, बाज़ का आप अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं, बाज़ का आप अपने कॉलीग्स के एक्सपीरियंस से सीखते हैं, बाज़ का आप अपने ऑनर्स के, अपने स्पॉन्सर्स के एक्सपीरियंस से सीख रहे होते हैं, बाज़ का आप मुख्तलिफ रिसोर्सेज से आप वो चीज़ सीख रहे होते हैं। और आफ्टर हैविंग दैट नॉलेज, आपके जो रिस्क असेसमेंट है वो काफ़ी बेहतर हो जाती है। नेक्स्ट वन इज प्रोजेक्ट टाइम मैनेजमेंट, कंट्रोल schedule controlling. Again, it's putting its part in project integration management, monitoring and controlling your project work, और परफॉर्म इंटीग्रेटेड चेंज कंट्रोल। आपका स्केड्यूल है, आपने उस स्केड्यूल को कंट्रोल करना है। सम टाइम आप बहुत से टास्क ऐसे होते हैं, आपने अभी तक उस चीज़ को डेफिनेटली किया होगा, आपने गैंट चार्ट या टाइम स्केड्यूलिंग करना या टाइम को डिवाइड करना, बहुत से टास्क कौन सा किस टाइम पे स्टार्ट होगा, कौन सा किसके बाद स्टार्ट होगा। जब आपका स्केड्यूल कंट्रोल नहीं हो रहा होता तो आप बहुत से टास्क को बाज़ औक़ात पैरेलल में स्टार्ट कर देते हैं, बहुत से टास्क को आप पहले करवा लेते हैं कि आपको पता होता है कि हाँ ये टाइम कंज्यूमिंग है या ये टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा बाद में। क्यों? क्योंकि एग्जाम्पल, ईद आ रही है, हॉलीडेज आ रही है, कोई ऐसा मसला आ रहा है या गवर्नमेंट पॉलिसीज कोई चेंज होने वाली, बजट आ रहा है, आपको पता है, आप उसको पैरेलल में करवाना शुरू कर देते हैं। यू नीड टू कंट्रोल योर स्केड्यूल। प्रोजेक्ट कॉस्ट मैनेजमेंट, कंट्रोल कॉस्ट, सेम थिंग एज योर स्केड्यूल। प्रोजेक्ट क्वालिटी मैनेजमेंट, परफॉर्म क्वालिटी कंट्रोल, ये भी मैं काफ़ी एक्सप्लेन आपको कर चुका हूँ। प्रोजेक्ट कम्युनिकेशन मैनेजमेंट, रिपोर्ट परफॉर्मेंस। आपकी जो परफॉर्मेंस रिपोर्टिंग है वो बाज़ का की इंडिकेटर होता है कि आपने कितना अच्छा परफॉर्म किया है, आप कितना अच्छा फ्यूचर में परफॉर्म करोगे। अब तक के सपोजली यू हैव बीन गिवन 10 टास्क, आउट ऑफ 10 आपने 5 में बहुत बुरा परफॉर्म किया या 6 में आपने बहुत बुरा परफॉर्म किया, देयर इज अ पॉसिबिलिटी, वेरी फेयर चांस आप नेक्स्ट 4 में आपको बहुत अच्छा काम परफॉर्म नहीं करेंगे। सो आपके जो ये एक इंडिकेटर के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ कि परफॉर्मेंस रिपोर्टिंग आपको कैसे हेल्प करती है या आपके सीनियर्स को कैसे हेल्प करेगी कि आप कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। इन नेक्स्ट स्लाइड, फ्रॉम हेयर ऑनवर्ड, नो देयर आर दीज 8 नॉलेज एरियाज। अब मैं आपको जो चीज़ एक्सप्लेन करूंगा वो हर नॉलेज एरिया के लिहाज से आपके जो इनपुट्स हैं और आउटपुट्स, ऑल दोज पीपल हु हैव स्टडीड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बिफोर या उन्होंने PMBOK पढ़ा है तो उनको इस चीज़ का आइडिया होगा कि इनपुट्स और आउटपुट्स क्या चीज़ें होती हैं। ये IOs जो होते हैं ये बेसिकली आपके एक तरह के इंडिकेटर्स भी बन जाते हैं। सो मॉनिटरिंग कंट्रोल प्रोजेक्ट वर्क is the process of tracking, reviewing and regulating the progress to meet the performance objective defined in a project management plan. Monitoring includes status reporting, progress measurement and forecasting. Performance report provide information on the project performance with regard to scope, schedule, cost, resources, quality and risk. You know that the latest aspect of triple constraint, whereas it is called triple constraint as time, cost, quality, but in the latest one there are 6 aspects of triple constraint, and over here I have mentioned scope, schedule, cost, resource, quality and risk, which can be used as input to other processes. Your project management plan, your performance report,
your enterprise environmental factors and organizational processes assets. And the output would be change request, project management plan updates, and project documents. These are the outputs from these input. If we track these inputs in project control environment, then the output would be your change request, your project management plan updates, your project documents update. Okay, let me tell you one thing over here. From here onward till the end of this lecture, you will see these three sentences very frequently. Number one, change request. Number two, project management plan updates. Everything that happens in a project, it will end up in updating your project management plan. उसके वर्जन पे वर्जन बाज़ औक़ात आपका कोई बड़ा प्रोजेक्ट होता है, उसके बहुत सारे वर्जन्स बन जाते हैं, इतने कि आप हैरान हो जाते हैं कि when you are closing that project, आपके पास एक पूरा स्टैक होता है for the revision documents, अगर आप उसको मैनुअली कर रहे हैं तो. और प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट्स अपडेट, आपके जो प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट्स हैं, सपोजली आपने प्रोक्योरमेंट डॉक्यूमेंट है, आपके इनवॉइसेस हैं, वो दे विल कीप ऑन चेंजिंग, वो आपके अपडेट होते रहते हैं. प्रोजेक्ट इंटीग्रेटेड चेंज कंट्रोल में पीएमसी किस तरीके से इन्फ्लुएंस डालता है? दैट इज, परफॉर्म इंटीग्रेटेड चेंज कंट्रोल इज द प्रोसेस ऑफ रिव्यूइंग ऑल द चेंजेस रिक्वेस्ट, approving changes, managing changes to the deliverables, organizational process asset, project document, and the project management plan. In this, perform integrated change control. As you have studied before, integrated change control board होता है, आपका integrated change control system आपने बनाया होता है कि जिसमें आपका एक अप्रूवल सिस्टम होता है. आपके अगर कोई भी चेंज रिक्वेस्ट है, वो किसके पास जाएगी, कौन उसको अप्रूव करेगा, कौन उसका रिव्यू करेगा, और फिर आप उसको इम्प्लीमेंट कैसे करोगे और करवाओगे. सो आप उसको सारे को प्रोसेस को रिव्यू करेंगे. रिक्वेस्ट अप्रूविंग चेंजेस, जो आपके चेंजेस अप्रूव हो चुकी हैं उनको आप कैसे मैनेज करोगे. मैनेजिंग चेंजेस टू द डिलीवरेबल्स. समटाइम आपका सपोज करें कोई प्रोडक्ट है, कोई सॉफ्टवेयर एग्जांपल आपको देना, आप सॉफ्टवेयर अपना डेवलप कर रहे हैं, उसका एक फेज तैयार हो चुका है, उसका एक फ्रंट एंड तैयार हो चुका है, चेंजेस आ जाती हैं, क्लाइंट की तरफ से चेंजेस आ जाती हैं, आप उसको रिव्यू करते हैं, अप्रूव करते हैं, अप्रूव करवाते हैं, और फिर उसके बाद उन चेंजेस को आपने जो डिलीवरेबल है उसके साथ आपने मैप कैसे करना है. आपके चेंजेस अप्रूव होना इज समथिंग एल्स, अप्रूव होने के बाद उसका मैप करना, दैट इज ऑल इन ऑन अ डिफरेंट बॉल गेम. सो वो आप उनको मैप कैसे करते हैं, मैनेज कैसे करते हैं उन चेंजेस को जो कि आपकी अप्रूव हुई हैं. ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस एसेट्स, आपके जो प्रोसेस है ऑर्गेनाइजेशन के, मुख्तलिफ प्रोसेसेस होते हैं हर ऑर्गेनाइजेशन के, हर चीज़ के प्रोसेस होता है. आपके जो ऑर्गेनाइजेशन के प्रोसेस हैं, बाज़ औक़ात आपके प्रोजेक्ट्स की वजह से वो भी इम्प्रूव हो रहे होते हैं, बहुत सी चीज़ें लर्न कर रहे होते हैं, बहुत से प्रोजेक्ट के थ्रू उनके जो लेसन लर्न होते हैं वो लेसन लर्न ऐसे होते हैं कि जो आपके ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को भी उसको भी इम्प्रूव कर देते हैं, और वो भी ऑब्वियसली आपके प्रोसेस एसेट बन जाता है. ओके, for perform integrated change control, if we look at the inputs and outputs, as said before, you will see few of the outputs as before. आप ये वो outputs देखेंगे कि जो continuously आप कर रहे हैं और इनकी repetition होगी. Inputs में project management plan, work performance information, change request, enterprise environmental factors और ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस एसेट्स. और इसका आउटपुट क्या है? आउटपुट में चेंज रिक्वेस्ट स्टेटस अपडेट्स, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान अपडेट्स, प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट्स अपडेट्स. वेरीफाई स्कोप. वेरीफाई स्कोप इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मलाइजिंग एक्सेप्टेंस ऑफ द कंप्लीटेड प्रोजेक्ट डिलीवरेबल्स. आप स्कोप को वेरीफाई करते हो. इनपुट इसका क्या होगा? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान, रिक्वायरमेंट्स डॉक्यूमेंटेशन, requirement traceability matrix and validated deliverables. और आउटपुट इसका क्या होगा? accepted deliverables, change request और project document updates.
आप प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट अपडेट्स यहाँ पे फिर से देख रहे हैं कि आपके जो प्रोजेक्ट का डॉक्यूमेंट है दैट विल कीप ऑन अपडेटिंग। और इनपुट में आप एक चीज देखेंगे, रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स इज इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर स्कोप वेरिफिकेशन। और वैलिडेटेड डिलिवरेबल्स, आपने जो डिलिवरेबल्स हैं वो वैलिडेट जो किए होते हैं वो आपके इनपुट रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स जो आपकी रिक्वायरमेंट थी और आपने उससे जो ट्रेसेबिलिटी अपना मैट्रिक्स बनाया था इन योर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान, वो आपके एक्सेप्टेड डिलिवरेबल्स के तौर पे आपका आउटपुट बनकर आएगा। कंट्रोल स्कोप इज द प्रोसेस ऑफ मॉनिटरिंग द स्टेटस ऑफ द प्रोजेक्ट and product scope and managing changes to the scope baseline, monitoring the project scope and the product scope both at the same time। input इसका क्या होगा? project management plan, work performance information, requirements documentation, requirement traceability matrix, organizational process assets। 5 output आपका क्या होगा? work performance measurements, organizational process assets updates, change request, project management plan updates and project document update। If you ask me personally, मेरा इसमें जो personal view होता है that is always आपका जो project management plan है it will keep on updating। और ये सारे जो चीज़ें आप पीछे कर रहे हैं, ये जितने आपके आउटपुट्स हैं, eventually आपके जो project management plan है उसने update होना है eventually। Control schedule. Control schedule is the process of monitoring the status of the project to update project progress and managing changes to the schedule baseline. We'll again say this. Control schedule is the process of monitoring. Control schedule is the process of monitoring the status of the project to update project progress and managing changes to the schedule baseline। बहुत बार ऐसा होता है कि आपने जो स्केजुलिंग की होती है प्लानिंग फेज में जो आपने अपने प्रोजेक्ट की स्केजुलिंग की होती है, आपको वो स्केजुलिंग चेंज करनी पड़ जाती है ड्यू टू मैनी फैक्टर्स। वी ऑल नो दैट वो फैक्टर्स बाय फॉर वो अब तक क्या हैं या क्या हो सकते हैं। आई एम एज्यूमिंग कि आपको वो फैक्टर्स इस वक्त बिल्कुल पता है। आपके प्रोजेक्ट की जो प्रोग्रेस है वो स्केजुल बेसलाइन जो है वो चेंज होनी है। उसमें इनपुट आपका क्या होगा? नंबर 1 आपका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान सबसे पहली इनपुट है आपकी। नंबर 2 आपने जो प्रोजेक्ट स्केड्यूल बनाया है वो आपके इनपुट। नंबर 3 वर्क परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन, आपने कितना वर्क अभी तक परफॉर्म कर लिया। हम उस एग्जाम्पल को दोबारा उठा के देखते हैं। 10 टास्क दिए थे, 6 टास्क में आपके जो परफॉर्मेंस है वो दैट इज बिलो 50%। तो नेक्स्ट 4 टास्क में देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि आप 50% तक परफॉर्म करेंगे, 50 से ऊपर नहीं कर सकेंगे। सो आपका वर्क परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन इज अगेन एन इंडिकेटर कि आपका जो स्केड्यूल है वो कितना उसकी वजह से चेंज हो रहा है। ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस एसेट्स, आउटपुट में क्या होगा? वर्क परफॉर्मेंस मेजरमेंट्स, आपके वो वर्क परफॉर्मेंस मेजरमेंट्स जो हैं वो चेंज हो रहे होंगे। ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस एसेट्स अपडेट, वो आपका ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस जो है वो अपडेट्स हो रहे होंगे। चेंज रिक्वेस्ट, किस टाइप की चेंज रिक्वेस्ट आई हैं, चेंज रिक्वेस्ट कितनी अप्रूव हुई हैं, आपको कितनी जरूरी हैं वो चेंज रिक्वेस्ट। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान अपडेट, एज वी ऑल नो बाय फार कि आपका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान अगेन वो अपडेट होगा। प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट्स अपडेट, वो आपके प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान के ही वो सब डॉक्यूमेंट्स हैं और वो आपके दोनों अपडेट्स हो रहे होंगे। Control cost. Control cost is the process of monitoring the status of the project to update the project budget and managing changes to the cost baseline as schedule baseline. Same is happening over here. आपकी जो cost baseline है कि हाँ जी मैं 10 रुपए is the maximum limit जो मैं spend कर सकता हूँ किसी एक चीज़ के ऊपर। एग्जाम्पल के तौर पे वो 10 रुपए जो आपने रखे हैं वो आपके बेसलाइन है। इससे ऊपर जाएगा there is something wrong, इससे नीचे आएगा there is something wrong। इसमें इनपुट क्या है? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान, वी ऑल नो दैट। प्रोजेक्ट फंडिंग रिक्वायरमेंट्स, आपकी जो फंडिंग है उसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो क्या हैं? वर्क परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन, आपका जो वर्क परफॉर्म कर रहे हो वो ऑब्वियसली वो किसी चीज़ के अगेंस्ट चार्ज हो रहा है। आप जो भी काम कर रहे होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं, ड्यूरिंग योर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टाइम आपका हर आवर जो है वो चार्ज हो रहे होते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस एसेट्स,
4 पॉइंट्स फॉर इनपुट। आउटपुट में आपके 6 पॉइंट्स हैं फॉर कॉस्ट कंट्रोल, वर्क परफॉर्मेंस मेजरमेंट, नंबर 2 बजट फोरकास्टिंग, नंबर 3 ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस एसेट्स अपडेट, नंबर 4 चेंज रिक्वेस्ट, नंबर 5 प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान एंड नंबर 6 project document updates. Perform quality control is the process of monitoring and recording results of executing the quality activities to assess performance and recommend necessary changes. आपने अपने क्वालिटी स्टैंडर्ड सेट किया होता है। क्वालिटी, लेट मी सेट दिस वे, आपका क्वालिटी बेसलाइन होता है कि हाँ जी ये एक प्रोडक्ट है, इसी के साथ का हमने प्रोडक्ट बनाना है। तो वो जो प्रोडक्ट आपने रखा हुआ है, दैट प्रोडक्ट इज एक्चुअली योर बेसलाइन। उस बेसलाइन को मैच करना चाहिए। उससे ऊपर का होगा ऑब्वियसली आपके क्वालिटी आप हाई कर रहे हो। क्वालिटी हाई करने का मतलब है कि आपकी कॉस्टिंग बढ़ रही है, आपकी लेबर, आपके स्केड्यूलिंग, आपका स्कोप, आप उससे बाहर जा रहे हो। सो आपने उस क्वालिटी को मीट करना है। अगर आप उस क्वालिटी से नीचे जाते हैं, अगेन इट मीन्स दैट जो प्रोडक्ट क्वालिटी इज गोइंग लो, विच मीन्स आपके कॉस्ट अफेक्ट हो रहा है, आपके स्केड्यूल अपडेट हो रहा है, वो इफेक्ट हो रहा है, क्वालिटी आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। सो वो जो परफॉर्मेंस है और उसको जो रिकमेंडेशन आपको मिलती है कि हाँ इसमें अभी इतनी चेंजेस हों तो फिर हम इस क्वालिटी स्टैंडर्ड को मीट करते हैं, उनको ऑब्जर्व करना या कंट्रोल करना और मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है। इसमें इनपुट्स क्या हैं? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान, क्वालिटी मैट्रिक्स, क्वालिटी चेकलिस्ट, वर्क परफॉर्मेंस मेजरमेंट्स, अप्रूव चेंजेस, डिलीवरेबल्स, ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस एसेट। ओके, डिलीवरेबल्स को हम काफ़ी इंपॉर्टेंस देते हैं क्योंकि आप टेस्टिंग फेज एग्जांपल दे रहा हूँ कि आप जब टेस्टिंग फेज में जाते हैं तो वहाँ पे आप एक प्रोडक्ट के कुछ कंपोनेंट्स या उसका एक प्रोटोटाइप आप बनाते हैं और उसमें आप उस डिलीवरेबल को चेक करते हैं कि हाँ ये कितना हमारे क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को या वो जो हमने क्वालिटी मैट्रिक्स एक बनाया था उसको ये कितना मीट कर रहा है। कंपोनेंट ए की ये क्वालिटी होनी चाहिए, कंपोनेंट बी की ये होनी चाहिए, कंपोनेंट सी की ये होनी चाहिए। क्या ये कंपोनेंट ए जो इस प्रोडक्ट का है, जो प्रोटोटाइप बनाया है, वो क्या 100% मीट कर रहा है? नहीं, 95% मीट कर रहा है। ओके, 95% इज एक्सेप्टेबल, दैट इज द बेस लाइन, वो एक्सेप्टेबल है। 96% फेयर इनफ। आपका जो कंपोनेंट बी है वो उसका हमने क्वालिटी स्टैंडर्ड रखा था एग्जाम्पल कि आप उसको इतने परसेंट पे आप उसको अप्रूवल दे सकते हैं कि हाँ इसमें कॉम्प्रोमाइज़ करें भी तो कोई इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा। सो समटाइम यू कीप ऑन मैन्यूवरिंग, यू कीप ऑन प्लेइंग विद दोज मैट्रिक्सेस। तो ये जो डिलीवरेबल होता है ये आपका सेट स्टैंडर्ड बन जाता है कि हाँ अब बाकी के जितनी प्रोडक्शन है वो इस प्रोसेस को, इतने प्रोसेस को फॉलो करने से हमें ये प्रोडक्ट मिलेगा बाय द एंड ऑफ द डे। सो वो जो हमारा एक स्टैंडर्ड बन गया है, डिलीवरेबल है, वो ही हमारा एक सेट स्टैंडर्ड होगा। आउटपुट में क्या आता है? क्वालिटी कंट्रोल मेजरमेंट्स, नंबर 2 वैलिडेटेड चेंजेस, नंबर 3 वैलिडेटेड deliverables, number 4 organizational process assets update, next change request, 6th project management plan update and project documents update. ये we know that कि this will happen, ये eventually इन्हीं में आके इनके changes incorporate होंगी। report performance. Report performance is a process of collecting and distributing performance information including status reports, progress measurements and forecasts. आप परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन खुद से हर चीज़ नहीं कर सकते हैं। डेफिनेटली यू नीड पीपल कि जो आपको वो इंफॉर्मेशन ला कर दें। आप फील्ड ऑफिस है, फील्ड ऑफिस का सुपरवाइज़र आपको बताएगा कि हाँ जी इतने लोगों ने इतना टास्क इतने टाइम में कंप्लीट कर लिया। वो जॉब कार्ड्स होते हैं वो इवेंचुअली आपके स्केड्यूलिंग में जाके वो शो हो रहे होते हैं, वहाँ से आपको पता चल रहा होता है कि हाँ कितना काम हमने कर लिया है, कितने लोग इसमें किस परसेंटेज के हिसाब से परफॉर्म करें। उसी की बेस पे आप अपनी फोरकास्टिंग करते हैं कि ओके रिसोर्स ए को मैंने टास्क ए दिया था, उस टास्क का जो टाइम था वो 5 डेज था। उसी रिसोर्स ने उस टास्क ए को, रिसोर्स ए ने टास्क ए को विद इन 4 डेज कंप्लीट कर लिया।
मीन्स कि वो इस क्वालिटी स्टैंडर्ड को, इतने काम के मैग्नीट्यूड को वो इतने टाइम पीरियड में कवर कर सकता है। ये आपके पास एक इंफॉर्मेशन आ गई। नेक्स्ट टास्क देते वक्त आप इस इंफॉर्मेशन को अपने जहन में रखोगे कि हाँ, रिसोर्स ए, टास्क बी, टाइमलाइन 5 डेज एक्सेप्टेबल। अगर टास्क थोड़ा बड़ा है 5 to 6 डेज एक्सेप्टेबल। आप वो फोरकास्टिंग कर रहे होते कि हाँ, ये काम इसने इतने दिनों में किया था तो ये काम भी ये इतने दिनों में कर सकेगा। उसमें कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जिनको आपने जहन में रखना होता है, लेकिन अगर फोरकास्टिंग कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आप उसमें बहुत सी चीज़ों को इस तरह देखते हैं। इनपुट इसके क्या हैं? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान, नंबर 2 वर्क परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन, नंबर 3 वर्क परफॉर्मेंस मेजरमेंट्स, नंबर 4 बजट फोरकास्टिंग। परफॉर्मेंस और बजट बहुत आपस में इनका ताल्लुक है। ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस एसेट्स, आउटपुट में परफॉर्मेंस रिपोर्ट, ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस एसेट्स अपडेट एंड चेंज रिक्वेस्ट। Monitor and control risk. Monitor and control risk is the process of implementing risk response. Implementing जो आपने बनाया था, जो आपने उसको प्लान सोचा हुआ था, वो एक्शंस, वो प्लान आप उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। Process of implementing risk response plan. Tracking identified risk, जो आपने रिस्क आइडेंटिफाई कर लिए आप उनको ट्रैक कर रहे होते हैं कि हाँ, एग्जाम्पल के तौर पे आपने ये देखना है कि आपके जो गवर्नमेंट लॉज हैं उनके बारे में सुना था कि वो नेक्स्ट 5 डेज में चेंज होंगे। आप अपने टास्क विद इन 5 डेज कंप्लीट करें, लेकिन यू कीप एन आई ऑन दोज रेगुलेशन, ऑन दोज गवर्नमेंट पॉलिसीज कि हाँ, वो उनकी मीटिंग कब हो रही है, वो कितने दिनों में वो बजट आ जाएगा, कितने दिनों में हमें वो चेंजेस जो हैं वो पता चल जाएंगी। सो आप उनको ट्रैक कर रहे होते हैं। दैट वाज एन एग्जांपल। आपके प्रोजेक्ट लाइफ में बहुत डिफरेंट तरह की एग्जांपल्स आ सकती हैं। मॉनिटरिंग रेजिडुअल रिस्क, आइडेंटिफाइंग न्यू रिस्क एंड एवेल्युएटिंग रिस्क प्रोसेस इफेक्टिवनेस थ्रू आउट द प्रोजेक्ट। इनपुट क्या है? रिस्क रजिस्टर। नंबर 2 प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान ऑब्वियसली। नंबर 3 वर्क परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन एंड नंबर 4 परफॉर्मेंस रिपोर्ट। ये परफॉर्मेंस रिपोर्ट जो है ये बेसिकली आपको बता रही होती है कि जो रिस्क आना है या जो आया हुआ है या जो रिस्क इस वक्त हमें फेस कर रहे हैं उसने हमारे परफॉर्मेंस पे कितना बड़ा इम्पैक्ट डाला है। आउटपुट रिस्क रजिस्टर अपडेट्स, ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस एसेट्स अपडेट, चेंज रिक्वेस्ट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान अपडेट्स एंड प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट अपडेट्स। Administer procurement. Administer procurement is the process of managing procurement relationship, monitoring contract performance and making changes and correction as needed. इसमें input क्या होगा? Procurement document, project management plan, contracts, performance reports, approved change request, work performance information. Output में आपके procurement documentation, organizational process assets updates, change request and project management plan update as usual. So by far first lesson till now we have covered or we have identified all the processes, process groups of project management that have an impact of project monitoring and controlling. आज का जो लेक्चर था, आज का जो हमारा लेसन था, उस लेसन में हमने बेसिकली जितने हमारे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में जिन जिन जगहों पे प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग का इम्पैक्ट आता है, आज के लेसन में हमने वो आइडेंटिफाई कर दिए। ये लेक्चर कल के लेक्चर की तरह ये लेक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट है इन ऑर्डर कि आप इस चीज़ को अपने जहन में जब मेमोराइज कर लेंगे कि हाँ, ये इनपुट्स हैं, ये आउटपुट्स हैं, ये प्रोसेस एरियाज़ हैं, ये नॉलेज एरियाज़ हैं जहाँ पे मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल का इम्पैक्ट आ रहा है, जहाँ पे मॉनिटरिंग कंट्रोल हमने परफॉर्म करनी है, उन सारे एरियाज़ को, उन 8
नॉलेज एरियाज को हमने आज उनके प्रोसेसेस को आइडेंटिफाई कर लिया, और न सिर्फ आइडेंटिफाई किया बल्कि हमने उसको समझा भी है, एक्सप्लेन भी किया है कि ये प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग कंट्रोल इस टाइम पे इस एरिया में कैसे परफॉर्म कर रहा है या आप इसको कैसे परफॉर्म करेंगे। सो आई गेस दिस इज द एंड ऑफ द लेक्चर, और आई एम होपिंग कि अब तक हम लोग को ये चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी, सो दैट आफ्टर दिस हमने जो नेक्स्ट हमारे टॉपिक हैं उनको हम फिर देखेंगे कि उन एरियाज़ में, क्योंकि एक और आपका टॉपिक है दैट इज़ प्रोजेक्ट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसमें प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग कंट्रोल का क्या इम्पैक्ट आता है। दैट इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत से कम जगहों पे इसके इंफॉर्मेशन होती है, बहुत से कम लोगों को एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता होता है कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी एक ऐसा एरिया है कि जहाँ पे मॉनिटरिंग कंट्रोलिंग की बहुत ज़रूरत होती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम उसको डिस्कस करेंगे। टिल देन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।